Hello friends, this is Jivesh. I welcome to my channel Bioprofessional. Today I'm gonna start a new lecture series where I'll be discussing about cell cycle and its regulations. So if I start from cell theory proposed by Claydon and so on in 1839, where they proposed that all living things are made up of cells and cells are the structural and functional unit of life. And that cell theory had been extended by one of the other scientists named Rudolf Virchow in 1855. He proposed that all living cells arise from pre-existing cells only. That means all the cellular organisms, more complex than viruses, are made up of cells. Any organism you look around, multicellular organisms, are made up of cells. But at certain point of time, it was just a single cell, right? And after that, it gradually divides and become a whole multicellular organism. If you consider human being also, it was at certain point of time, it was just a single cell zygote, right? And after that, the cell gradually divide and become an adult person, right? Adult person. So if I fix the age of that person, let's say 25 years, and height at, let's say, 5.5 feet, right? After that age, let's say 25 years, the height of that person is not increasing. How can this be possible? Because before that, the height of that person was gradually increasing, and after that period, the height is not increasing. This is the case of cell cycle regulation. So is that the only reason why cell cycles are regulated? No. There are a lot many aspects of cell cycle regulation you will get to know within very short period of time. So if you are watching this video for the very first time, I recommend you to subscribe to my channel, tap the bell icon so that when I upload a new video, you get the notification. So before I go deep into this topic, I suggest you to remove all your thought process that you were engaged with. Be focused, be 100% attentive. I'm sure you are going to learn so many new things today. So let's start today's topic. देखिए, जो सेल साइकिल का रेगुलेशन है, चाहे आप प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करें या यूकैरियोट्स के बारे में बात करें, दोनों में जो है सेल साइकिल रेगुलेशन होता है. लेकिन हम जो है यूकैरियोट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोट सेल्स के रेस्पेक्ट में. हम डिस्कस करेंगे जो है यूकैरियोट्स के रेस्पेक्ट में, राइट? तो अगर हम सेल साइकिल की पूरा प्रोसेस को देखें, साइकिल क्यों कहते हैं हम देखेंगे थोड़ी देर में. देखिए, ये साइकिल जो है ना, सेल साइकिल, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो फेजेस में. एक तो है इंटरफेज, एक है एम फेज. एक पूरा के पूरे साइकिल को हम डिवाइड कर सकते हैं इंटरफेज एंड एम फेज में, ठीक है. इंटरफेज में भी अगर इसमें भी हम देखें इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें 3 डिफरेंट फेजेस शामिल है, ठीक है. एक तो है G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, राइट? G1, S एंड G2 फेज. एंड उसके बाद आता है एम फेज. इसमें भी दो प्रोसेस है, ठीक है. एम फेज में 2 प्रोसेस होता है. एक तो है कैरियोकाइनेसिस, एक है साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, राइट? तो कैरियोकाइनेसिस में जो है आपको 2 कंडीशन मिलेंगे. एक आपको मिलेंगे माइटोसिस, राइट, और एक मेयोसिस, ठीक है. आपको 2 कंडीशन मिलेंगे, एक है माइटोसिस, एक है मेयोसिस. माइटोसिस जो है, कोई भी यूकैरियोटिक सेल में आपको माइटोसिस देखने को मिलेंगे, कोई भी यूकैरियोट को आप कंसीडर करें. लेकिन जो मेयोसिस है ना, ये बस ओनली आपको देखने को मिलेंगे ओनली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में. सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है. और जो माइटोसिस है, कोई भी ऑल यूकैरियोट्स में आपको देखने को मिलेंगे, कोई भी यूकैरियोट्स, राइट. लेकिन मेयोसिस जो है, ये सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेंगे. यहाँ पे और एक कंडीशन है. मेयोसिस परफॉर्म होने के लिए इसका जो प्लॉइडी लेवल, इस ऑर्गेनिज्म का जो प्लॉइडी लेवल आपको आता है ना. देखिए, प्लॉइडी लेवल जो है, ये है कि कोई भी क्रोमोसोम अगर ऑर्गेनिज्म में है तो ये कितना सेट में है, कितना कॉपी इसका प्रेजेंट है. अगर हम ह्यूमन बीइंग की कंसीडर करें तो ह्यूमन बीइंग में क्या है कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है. 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है. हम कहते हैं जो है 2n = 46, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये 46 है, राइट.
और एन किसे डेजिग्नेट कर रहा है, एन जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम को डेजिग्नेट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे एन का वैल्यू है 23 और 2 मतलब एक क्रोमोसोम 2 कॉपी में पाया जाता है, तो अल्टीमेटली टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है 46 है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जो मियोसिस होने के लिए एक तो कंडीशन, मतलब जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है उसी ऑर्गेनिज्म में जो है मियोसिस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एक कंडीशन है, इसका जो प्लॉइडी लेवल है ना, इसका जो प्लॉइडी लेवल है ये हमेशा जो है इवन नंबर होना पड़ेगा, इवन नंबर, लाइक 2n हो सकता है, 4n हो सकता है। एंड ये क्यों जरूरी है, ये जरूरी क्यों है, हम जब मियोसिस को डिस्कस करेंगे तब हम जानेंगे, ठीक है। अभी इतना ही ध्यान रखिए, मियोसिस होने के लिए इसका जो प्लॉइडी लेवल है ये इवन होना चाहिए, और माइटोसिस के लिए ऐसे कोई जरूरी नहीं है, प्लॉइडी लेवल कुछ भी हो, कोई भी प्लॉइडी लेवल हो, चाहे मतलब कोई भी नंबर ऑफ सेट जो है क्रोमोसोम का कोई भी हो सकता है, ये माइटोसिस परफॉर्म होगा ही होगा। तो आप देख सकते हैं सेल साइकिल को जो हम डिवाइड कर सकते हैं G1, S, G2 एंड M फेज में, यानी 4 फेजेस है इसमें, ठीक है। और G फॉर गैप फेज, या तो कोई भी अगर आप सेल बायोलॉजी की बुक को कंसिडर करते हैं, या गैप फेज लिखा मिलेगा या ग्रोथ फेज लिखा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसे थोड़ा अलग से रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं सेल साइकिल को। देखिए अगर मैं सेल साइकिल को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, राइट, मान लीजिए ये G1 फेज है, मान लीजिए ये G1 फेज है, ये S फेज है, ये G2 फेज है और ये M फेज है, राइट। मैंने आपको कहा है जो सेल साइकिल का जो प्रोसेस है ये एक रेगुलेटेड प्रोसेस है। देखिए सेल साइकिल यानी मतलब सेल का डिवीजन हो रहा है, और डिवीजन होने के लिए ये अलग अलग फेज होके जो गुजर रहा है उसके बाद सेल का डिवीजन हो रहा है, यही तो है, अलग अलग फेजेस है। जब सेल का डिवीजन होता है तो ये इस फेज होके गुजरता है, उसके बाद जो है सेल डिवाइड हो जाता है। तो मान लीजिए अगर ये प्रोसेस रेगुलेटेड ना हो कि अनरेगुलेटेड हो जाएगा तो क्या होगा। देखिए अगर कोई एक नॉर्मल सेल है, मान लीजिए एक नॉर्मल सेल है, ये जो है डिवीजन होगा, ये हमेशा क्या होता है, एक रेगुलेटेड डिवीजन होता है, सेल जो है रेगुलेटेड डिवीजन होता है। डिवीजन के बाद डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, और उसके बाद बहुत सारा सेल जो है एपोप्टोसिस के प्रोसेस में जाता है, एपोप्टोसिस। ये सारा का सारा जो है हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस है। सेल जो है पहले नॉर्मल सेल कोई भी रहेगा तो इसका डिवीजन होगा, इसके बाद डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन मतलब कोई भी एक सेल एक स्पेसिफिक सेल टाइप में मूव करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं स्टेम सेल के बारे में बात करूं, स्टेम सेल जो है ये अनडिफरेंशिएटेड सेल है, ये जब डिवीजन होगा उसके बाद ये डिफरेंशिएटेड हो जाएगा। मान लीजिए लिवर सेल में चला गया, किडनी के सेल में चला गया, ब्रेन सेल में चला गया, मतलब ये डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है एपोप्टोसिस हो जाएगा। मान लीजिए ये जो नॉर्मल सेल है ना, ये अनरेगुलेटेड डिवीजन में चला गया, अनरेगुलेटेड डिवीजन। अगर अनरेगुलेटेड डिवीजन हो गया यानी इसका कोई रेगुलेशन नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली जो है ये ट्यूमर का फॉर्मेशन कर लेगा, ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये मैं स्टेप दिखा रहा हूं आपको, मान लीजिए ये भी स्टेप सही है, ये स्टेप मतलब रेगुलेटेड डिवीजन हो रहा है, लेकिन जो है डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, तो भी जो है ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर सेल सिर्फ डिवाइड हो रहा है, रेगुलेटेड डिवीजन तो हो रहा है लेकिन डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, तब भी आपको ट्यूमर का फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए ये तीनों स्टेप भी हो रहा है, ठीक है, सेल नॉर्मल सेल है, इसका रेगुलेटेड डिवीजन भी हो रहा है, डिफरेंशिएशन भी हो रहा है, लेकिन जो एपोप्टोसिस यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ नहीं हो रहा है, सेल का डेथ नहीं हो रहा है, तब भी जो है ट्यूमर का फॉर्मेशन हो सकता है। यानी और ट्यूमर का फॉर्मेशन हम कह सकते हैं कि प्राइमरी रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, राइट। कैंसर फॉर्म होने के लिए जो प्राइमरी रीजन है ट्यूमर है, और भी कंडीशन है कैंसर फॉर्म हो सकता है, हम देखेंगे, लेकिन जो प्राइमरी रीजन है ये है ट्यूमर। तो आप देख सकते हैं कि रेगुलेटेड अगर सेल डिवीजन ना हो तो क्या कुछ हो सकता है, ठीक है। आपका बॉडी जो है नॉर्मल बिहेव ही नहीं कर सकता है अगर डिवीजन जो है ये रेगुलेटेड ना हो। देखिए जब सेल साइकिल का प्रोसेस परफॉर्म होता है ना, तो जो G1 फेज है, उसके बाद S फेज है, उसके बाद G2 फेज है, उसके बाद M फेज है, मतलब एक प्रोसेस के बाद एक प्रोसेस है, एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है, ठीक है। मान लीजिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये G1 एंड G2 के बीच में जो है M फेज है, ऐसे नहीं कह सकता हूं।
G1 एंड G2 के बीच में जो है आपको S फेज मिलेंगे और G2 एंड G1 के बीच में आपको M फेज मिलेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको अगर कहता हूं G2 एंड G1 के बीच में, G2 एंड G1 के बीच में अगर मैं कह रहा हूं कि आपको S फेज मिलेंगे तो मैं गलत हूं। ठीक है, ये नहीं हो सकता है। G2 एंड G1 के बीच में जो आपको M फेज मिलेंगे, अगर मैं कहता हूं आपको G1 एंड G2 के बीच में S फेज मिल रहा है तो मैं सही बोल रहा हूं। जो सेल साइकिल का प्रोसेस है एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। ये साइकिल सेल कोई भी सेल फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद जो है G1 फेज खत्म होने के बाद ही जो है ये S फेज में एंटर कर सकता है। ऐसे नहीं है कि G1 फेज खत्म नहीं हुआ S फेज में आ गया, उसके बाद उसको लगा कि नहीं अभी तो मुझे फिर G1 फेज में जाना है, ऐसे नहीं होगा। एक फेज खत्म होने के बाद ही जो है एक दूसरा फेज में एंटर हो सकता है। G2 फेज खत्म होगा उसके बाद M फेज में जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कोई भी एक सेल साइकिल का प्रोसेस, मतलब सेल डिवाइड हो रहा है, इसमें मान लीजिए कोई एक सेल S फेज में है तो ये फिर से जो है दोबारा G1 फेज में नहीं जा सकता है। मतलब ये एक प्रोसेस जो है एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। हाँ, S फेज में आके फिर यहाँ पे स्टक हो सकता है, यहाँ पे अरेस्ट हो सकता है। हम देखेंगे सेल साइकिल अरेस्ट भी होता है, लेकिन जो है S से फिर G1 फेज में नहीं जा सकता है, M से फिर G2 फेज में नहीं आ सकता है। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इन्हें समरी अगर हम देखें तो इस सेल साइकिल का प्रोसेस एक रेगुलेटेड प्रोसेस है। ठीक है, एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, एक के बाद ही एक होगा। ठीक है, उसके बाद एक फेज कंप्लीट होने के बाद दूसरा फेज में आएगा और फाइनली जो है एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। देखिए, ये तो हमने बात किया जो भी सेल्स है सेल डिवीजन के प्रोसेस में है, इसके बारे में हमने बात किया। लेकिन क्या आपके बॉडी में जितना भी सेल्स है, मान लीजिए कोई एडल्ट बॉडी में जितना भी सेल्स है, क्या हमेशा डिवाइड हो रहा है? नहीं, ज्यादातर सेल्स जो है आपके बॉडी में डिवाइड नहीं हो रहा है, एक अलग ही फेज में है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? G0 फेज कहते हैं। मान लीजिए कोई सेल अगर डिवाइड नहीं हो रहा है, ये सेल साइकिल के प्रोसेस में नहीं है, ये सेल साइकिल के प्रोसेस में नहीं है, अलग एक फेज में है, इसे हम G0 फेज कहते हैं। ठीक है, तो G0 फेज में जो अगर सेल चला जाता है, क्या ये सेल वापस से जो है डिवाइड कर सकता है? देखिए, हम एक टाइप ऑफ सेल को कहते हैं क्विसेंट सेल। ठीक है, हम क्या कहते हैं? क्विसेंट सेल्स कहते हैं। क्विसेंट सेल्स वो सेल्स होता है, ठीक है, इसके पास तो डिवाइड होने की एबिलिटी है, लेकिन फिलहाल जो है ये G0 फेज में है, अभी डिवाइड नहीं कर रहा है। अगर आप इसे कोई भी, अगर आप इसे कोई भी सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, या मान लीजिए आप इसे माइटोजन दिए, माइटोजन से सिग्नल प्रोवाइड किए, तो उसके बाद जो है फिर से जो ये इस सेल साइकिल के प्रोसेस में एंटर हो जाएगा। ठीक है, इसे हम क्विसेंट सेल कहते हैं। बहुत सारे सेल्स ऐसे भी है, हमको मालूम है कि टर्मिनली डिफरेंशिएटेड होता है। मतलब अगर मान लीजिए कोई एक सेल है, ठीक है, ये डिवाइड हुआ, उसके बाद एक डिफरेंशिएशन हुआ, डिफरेंशिएशन होने के बाद उसके पास एबिलिटी नहीं रहता है कि फिर से जो है एक सेल साइकिल के प्रोसेस में आए। इसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स। टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स। देखिए, आपको ये नाम से ही मालूम चल रहा है ना, टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स, मतलब ये दोबारा जो है ये सेल साइकिल के प्रोसेस में नहीं आ सकता है। ये जब सेल डिफरेंशिएशन का प्रोसेस हुआ, ये एक स्पेशलाइज सेल बन गया और उसके बाद जो है ये दोबारा सेल साइकिल में आ ही नहीं सकता है। इसका एग्जांपल भी है, अगर आप नर्व सेल्स को देखें, ठीक है, आपके बॉडी में जितने भी नर्व सेल्स है, ये आप कितना भी उसे माइटोजन से सिग्नल प्रोवाइड करें, ये दोबारा जो है सेल साइकिल में एंटर नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप एग्जांपल देखिए मसल सेल्स की, ठीक है, मसल सेल्स की अगर आप देखें तो ये भी जो सेल्स है, जितना भी सेल्स है, ये दोबारा सेल साइकिल के प्रोसेस में आ ही नहीं सकता है। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, मान लीजिए एक ह्यूमन सेल है, उसको डिवाइड होने में टाइम कितना चाहिए? तो देखिए, अगर हम इन विट्रो कल्चर करें सेल्स की, ह्यूमन सेल्स की, अप्रोक्सीमेटली जो है अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो G1 फेज में इसको अप्रोक्सीमेटली 11 आवर्स चाहिए होता है, S फेज में इसको 8 आवर्स, G2 फेज में इसको अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स, और जो M फेज अप्रोक्सीमेटली 1 आवर। देखिए, ये वैल्यू जो है ये फिक्स नहीं है, ये जो टाइम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है फिक्स नहीं है, ये वेरी हो सकता है सेल टू सेल। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें, एक टिपिकल ह्यूमन सेल कल्चर करते हैं हम इन विट्रो कल्चर, तो इसको डिवाइड होने में अप्रोक्सीमेटली जो है 24 आवर्स ऑफ टाइम चाहिए होता है।
तो इस लेक्चर में हम लोगों ने जो है डिस्कस किया है ओवरव्यू ऑफ द सेल साइकिल। हमने देखा है कि एक सेल जब मूव करता है एक फेज से दूसरे फेज तक, ये एक प्रोसेस, एक पूरा रेगुलेटेड प्रोसेस है। हम अगले लेक्चर से डिस्कस करेंगे इसका रेगुलेशन पार्ट, क्योंकि रेगुलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है कि रेगुलेशन जो है कितना बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है। अगर रेगुलेटेड नहीं रहेगा तो ये ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। हम डिस्कस करेंगे सीडीके एंड साइक्लिन्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स माना जाता है। उसके बाद हम देखेंगे सेल जब मूव करता है एक फेज से दूसरे फेज तक, तो इसमें चेक पॉइंट भी रहता है, चेक होता है हमेशा। ये चेक होके ही जो है दूसरे फेज में जाता है, क्योंकि सारा जो प्रोसेस है ये फेजेस जो है इरिवर्सिबल है, और ये हमेशा जो है टाइटली चेक्ड होके ही उसके बाद दूसरे फेज में मूव करता है। So finally, I want to say that if you have not subscribed to my channel yet, then please do subscribe to my channel. Share this video with your friends so that they also get to know all these details in a very simple manner, and they also study life sciences with great interest. Thank you for watching this video.